دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے تک موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ حکومت، پاک افواج اور عوام تمام چیلنجز کے خلاف بنیان و مرصوص کی مانند یکجا ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس کی سربراہی کرتے ہوئے کہا، دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے، ان کے معاون انفراسٹرکچر کی تباہی اور پاک سرزمین کو کسی بھی شرانگیز کارروائی سے بچانے کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ شرکا نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم ہو رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے برعکس ہے اور یہ رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ افغان طالبان رجیم حالیہ دنوں میں مسلسل پروپیگنڈے کے تحت پاکستان پر افغانستان کے اندر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ ٹرمپ کی دادا گیری، کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو دنیا مصیبت میں پڑ جائے گی۔ B-2 بمبار طیارے نے بھیجتے تو ایران 2 ہفتوں میں ایٹمی طاقت بن جاتا۔ ایران کی قیادت ختم کر دی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اوول آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس فضائیہ بحریہ کوئی اینٹی ایئر کرافٹ صلاحیت نہیں بچی۔ ایران کے پاس اب کوئی چانس نہیں ہے۔ ایران جب ہم سے بات کرتا ہے تو یہی کہتا ہے، اب ہمارا کوئی چانس نہیں۔ ٹرمپ نے پھر دل کے پھپھولے پھوڑے، کہا کہ ٹرمپ امن نوبیل انعام کا حقدار نہیں، جبکہ میں نے پاکستان، بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ 47 برس بعد ایران اور امریکہ کے اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے مذاکرات ممکن ہوئے۔ بطور ثالث پاکستان عالمی برادری سے رابطے میں ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں سفراء اور ڈپلومیٹک کور سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پہلگام حملے کا الزام بغیر ثبوت پاکستان پر لگایا۔ بھارت کی الزام تراشی کے اقدامات سیاسی اہداف پر مبنی تھے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ پاکستان نے بھارت کے لڑاکا طیارے مار گرائے۔ ایئر چیف مارشل کی قیادت میں شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ جنگ بندی ختم نہیں ہوئی، آبنائے ہرمز سے ایران کا قبضہ ختم کریں گے۔ واشنگٹن تہران کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں چاہتا ہے۔ ایران نے حملے جاری رکھے تو اسے امریکہ کی بھرپور طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے لیے ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے پینٹاگون میں نیوز بریفنگ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے کسی مطالبے پر سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ امریکہ اب بھی بڑھتر پوزیشن میں ہے۔ پروجیکٹ فریڈم کا مطلب ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی کا خاتمہ نہیں، جنگ بندی برقرار ہے۔ یہ آپریشن ایک الگ اور مخصوص مشن ہے جس کا مقصد صرف تجارتی جہاز رانی کو ایرانی جارحیت سے بچانا ہے۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے بتایا کہ جنگ بندی کے بعد سے ایران نے نہ صرف امریکی افواج کو نشانہ بنایا بلکہ 9 مرتبہ تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ بھی کی اور 2 کنٹینر بردار جہازوں کو قبضے میں لیا۔ پاسداران انقلاب کی اجازت اور رہنمائی کے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 امریکی جہاز پتھریلے حصے میں پھنس گئے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی مشورے پر آبنائے ہرمز کے جنوب سے نکلنے کی کوشش کرنے والے 2 تجارتی جہاز پانی کے اندر موجود پتھروں میں پھنس گئے ہیں۔ عمانی ساحل کے قریب آبنائے ہرمز کے جنوب میں جزیرے مسندم اور جزیرے الخیل کے قریب والا پانی اتھلا اور پتھروں سے بھرا ہوا ہے، وہ فطری جغرافیائی آبی گزرگاہ نہیں۔ امریکی سینٹ کام نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ امریکی پرچم بردار 2 تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات میں گزشتہ رات شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کی شدید مذمت۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا خطے میں امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی کا احترام اور اس پر مکمل عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ضروری ہے۔ مشکل گھڑی میں پاکستان اماراتی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔
खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर सऊदी अरब का तशवीश का इजहार, तमाम फरीकैन को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने और हालात मजीद ख़राब ना करने की ताकीद। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। आबना हुरमज़ में जहाज़ रानी की बहाली को भी इंतहाई अहम करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर UAE से टेलीफोनिक राबता, मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमले की मजम्मत, सऊदी अरब का UAE की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा। आबना हुरमुज़ खुलवाने के लिए नए इत्तेहाद की तश्कील का इम्कान। जनूबी कोरिया का अमरीका के प्रोजेक्ट फ्रीडम में शमूलियत पर गौर शुरू। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिफारती और अस्करी पहलुओं का भी तफसीली जायजा लिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक जनूबी कोरिया की मुमकिना शमूलियत से बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ेगा। स्पेन का आबना हुरमुज़ में किसी भी फौजी कार्रवाई का हिस्सा न बनने का ऐलान। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस सूरत हाल का कोई फौजी हल नहीं, हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना होगा। खित्ते की बदलती सूरत हाल, ईरान सिफारती तौर पर सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पर। अब्बास इराक़ची चीनी हम मनसब से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी और चीनी वज़ीर ख़ारजा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इससे कबल अब्बास इराक़ची ने कहा कि आबना हुरमज़ के वाक़यात से वाज़ेह है सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल एक डेडलॉक मनसूबा साबित हो रहा है। एक डेडलॉक मनसूबे के हवाले से फ्रांस सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि वो आज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात करेंगे। मैक्रोन ने ईरान पर जोर दिया वो आबना हुरमज़ को दोबारा खोल दे ताकि इसका अहम बहरी रास्ते में आज़ादाना नक़्लो हरकत बहाल हो सके। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर क़ालिबाफ की अमेरिका को वार्निंग। कहते हैं कि आबना हुरमुज़ में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की पॉलिसीज़ के बाद सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो रही है। खत्ते में एक नई ताकत का तवाज़ुन तश्कील पा रहा है जिसके असरात आलमी सतह पर मुरतब होंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए आबना हुरमुज़ में जहाज़ रानी और तवानाई की तरसील को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका ने पासदारान इनक़लाब की नहीं शहरी कश्तियों को निशाना बनाया जिसमें 5 अफराद की जान गई। कश्तियाँ मुसाफिरों और सामान की नकलो हमल कर रही थीं। ईरानी हुक्काम ने कार्रवाई को अमेरिकी फ़ौज के खौफ और दबाव का नतीजा करार दिया। ईरान का बड़ा दिफाई इक़दाम, क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए गए। ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने खबरदार किया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की आबना हुरमुज़ की जानिब पेशकदमी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अगर जदीद रडार के जरिए खुफिया तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर मालियाती इदारे का इंतबाह। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि जंग के नतीजे में महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। तवील मुद्दती महंगाई की तवक्कुआत अब भी मुस्तहकम हैं। हम अभी सबसे ख़तरनाक मरहले में दाखिल नहीं हुए। जंग अगले बरस तक जारी रही और तेल $125 तक पहुँचा तो ज़्यादा ख़राब नताइज होंगे। आलमी मईशत के लिए ख़राब सूरत हाल वाला मंजरनामा बरकरार है। भारत फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसीज खत्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। भारतीय इक़दामात ने खत्ते के अमन को दाव पर लगाया। इस्लामाबाद में वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम किताब दी बैटल ऑफ ट्रुथ की तकरीब इजरा से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि भारत में तमाम अक़लियतें मज़ालिम का शिकार हैं। भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानिए और सिफारती महाज पर भारत को शिकस्त दी। दुनिया ने भारत के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। हालिया जंगों के बायस पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया कमी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एतराफ़। रवा माली साल जुलाई ta फरवरी गैर मुल्की सरमायाकारी में 22% कमी हुई। पाक भारत और पाक अफगानिस्तान कशीदगी के बायस भी गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी देखी गई। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से गैर मुल्की सरमायाकारी में शॉर्टफॉल का अजाला होगा। गुज़श्ता माली साल मुल्क में $4 अरब 28 करोड़ की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। गैर मुल्कियों ने $1 अरब 79 करोड़ की तफसीलात बैरून मुल्क भिजवाईं।
हुकूमत का गैस बहरान पर बड़ा एक्शन प्लान। वज़ीर-ए-आज़म का तवानाई शोबे में इस्लाहात का फैसला। इदारा जाती हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। ज़राए के मुताबिक गैस फराहमी, कीमत और तलब के इंतजाम के लिए जामे हुकूमती फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NCMC का क़याम, मरबूत निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। पावर टास्क फोर्स के इक़दामात NCMC के तहत लाने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम से ब्रीफिंग मांग ली, पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दारसद्दा में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, आलिम दीन शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस तरंगजई शहीद, 2 मुहाफिज जख्मी। हमलावरों ने मौलाना इदरीस की गाड़ी को निशाना बनाया। वाक़े के बाद चारसद्दा में एहतजाज, ताजरों की जानिब से दुकानें बंद कर दी गई। तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। फारूक आज़म चौक में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। पुलिस ने जाय वक़ुआ से 9mm के खोल बरामद कर लिए। TV कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली गई। तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमले में 2 मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस ले लिया। साइबर जंग में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने भारत को परेशान कर दिया। मार के हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार था। हमारी फजाइया ने भी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाक बहरिया भी दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार थी। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा, मार के हक की फतह ने पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। पाकिस्तान में पहली बार IT मरदमशुमारी करवाने का फैसला। वज़ारत IT के ताउन से इदारा शुमारियात IT मरदमशुमारी करेगा। हुक्काम के मुताबिक मरदमशुमारी का मकसद नौजवानों को डिजिटल महारतों का डेटा जमा करना है। वीडियो एडिटर्स, फ्रीलांसर्स और कॉल सेंटर मुलाजमीन भी शामिल होंगे। गैर रस्मी IT लेबर को पहली बार कौमी डेटा में शामिल किया जाएगा। मरदमशुमारी से IT माहिरीन की बैरून मुल्क रोजगार तक रसाई बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सफाई सुथराई से हुकूमत की कारकर्दगी का पता चलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। कहती हैं कि तमाम सहूलियात फराहम की, अगर फिर भी कारकर्दगी ना हो तो अफसोस है। इलीट हर जगह अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इदारों में भर्तियों के लिए सियासी मुदाखलत को गुनाह समझते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरबराही सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी। KMC को 24 टाउन्स में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए भी फंड्स जारी। KS3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला की कराची की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू करने की हिदायत। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में कमी। समुद्री हवाएं बहाल, दर्जा हरारत में भी कमी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 81% रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक गर्मी की लहर का इम्कान मौजूद नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की शेर बंगला स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने वार्म अप और फील्डिंग सेशंस में भी हिस्सा लिया। कौमी स्क्वाड कल मुकामी वक्त के मुताबिक 10 से 1 बजे तक प्रैक्टिस करेगा। और न्यूयॉर्क में गाला फैशन शो। मशहूर शख्सियात ने कॉस्ट्यूम आर्ट थीम के तहत शानदार शाहकार और तख्लीकी अंदाज अपनाए। ग्लूकारा रेहाना समेत ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार निकोल किडमैन ने सुर्ख रंग का खूबसूरत गाउन पहना। दीगर मशहूर शख्सियात ने गैर मामूली अंदाज के लिबास पहनकर इवेंट को यादगार बना दिया।